Yeah, hi all. Let's see some more examples on continuity and differentiability. So for uh, the continuity, the conditions are LHL has to be equal to RHL. LHL has to be equal to RHL, and that should be equal to functional value at that point. So they are given a function here. They have asked us to calculate the if given function is continuous or no. They are not given the exact point, but what you need to analyze is where it is changing. Okay, by looking at the question, let's segregate it. F of x equal to 2 plus x. So f of x equal to 2 plus x when x is greater than or equal to 0, and f of x is 2 minus x 2 minus x when x is less than 0. Then f of x is differentiable at x equal to 0, non-differentiable at x equal to 0. The third option is discontinuous at x equal to 0. 0 a, x equal to 0. None of this. Okay. So there are two options here. One thing is differentiability and another thing is continuity. So we'll verify uh, both the stuff. I mean continuity and differentiability. Let's verify the continuity. Continuity. कंटिन्यूटी के लिए क्या करेंगे हम कंटिन्यूटी के लिए LHL and RHL LHL equal to RHL equal to functional value at that point. So check करना पड़ेगा हमें LHL RHL and f of a. LHL left hand limit and right hand limit. Left hand limit of what, which point, left hand of what point, at which point we have to calculate LHL and RHL. That's the main thing. So तुम्हें लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट ये है क्या है वो इम्पोर्टेंट थिंग इज LHL और RHL को कहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा और कहाँ नहीं करना पड़ेगा. LHL एंड RHL को कहाँ कैलकुलेट करना पड़ता है when the function definition is changing. When the function definition is changing. The function definition is changing. सो व्हेन द फंक्शन डेफिनेशन चेंजिंग मतलब कहाँ विच पॉइंट पे वो फंक्शन डेफिनेशन चेंज हो रहा है उधर तुम लोगों को LHL और RHL कैलकुलेट करना पड़ेगा. नहीं तो इफ इट इज सिंगल फंक्शन डेफिनेशन then it is always continuous, like polynomial functions are always continuous in their domains and likewise. ठीक है, तो अभी मुझे लग रहा है कि एट वैल्यू जीरो एट वैल्यू जीरो द फंक्शन इज चेंजिंग. जीरो के लेफ्ट साइड पे एक फंक्शन डेफिनेशन है और जीरो के राइट साइड पे एक फंक्शन डेफिनेशन है. सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर वी हैव टू कैलकुलेट LHL एंड RHL. ओके ठीक है, तो उसके लिए इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा. इरेजर कहाँ गया यार हमारा. ठीक है, LHL और RHL कैलकुलेट करेंगे कहाँ, LHL and RHL at x equal to 0. ठीक है, LHL कैलकुलेट करने के अगेन यू हैव टू यूज लिमिट ऑफ फंक्शन when x tends to little less than 0, that is 0 minus. so क्या होगा ये लिमिट ऑफ 0 माइनस रहा तो क्या, what is the definition of the function, it is 2 minus x when x tends to 0 minus. तो इधर 0 पुट किए तो ये बना
माइनस, सो 2 माइनस, क्या बना ये, एक्स वैल्यू 0 पुट किए तो इधर 2 माइनस 0 दैट इज 2, ये बना LHL। सो RHL कैलकुलेट करेंगे। RHL क्या होता है, लिमिट ऑफ f of x when x tends to 0 प्लस। सो 0 प्लस पे क्या डेफिनेशन है, 0 प्लस मोर, जीरो ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन डेफिनेशन है 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स when x tends to 0 प्लस। सो 0 इधर पुट किया तो क्या होगा, ये 2 प्लस 0। तो देखिए LHL भी 2 आया, RHL भी 2 आया, ठीक है। तो LHL और RHL इक्वल हुआ। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट f ऑफ, सॉरी 0, f ऑफ 0। तो f ऑफ 0 के लिए क्या है, f ऑफ 0 क्या हुआ, f ऑफ 0 मतलब x इक्वल टू 0 रहा तो द फंक्शन डेफिनेशन इज 2 प्लस एक्स, that is 2 plus 0, that is 2 again. So LHL is 2, RHL is 2, LHL be 2, RHL be 2, and f of a, I mean f of 0 is also 2. So this is continuous at x equal to 0. I think you got this point very clear, right? So हम क्या किए, LHL चेक किए, LHL कौन से पॉइंट पे चेक किए, कहाँ फंक्शन डेफिनेशन चेंज हो रहा है उधर चेक किए, LHL और RHL। सो फंक्शन डेफिनेशन एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेंज हो रही है तो LHL कैलकुलेट किए एंड RHL कैलकुलेट किए, RHL और LHL को कंपेयर किए, LHL इज इक्वल टू RHL, वो भी 2 है, RHL भी 2 है, एंड फंक्शनल वैल्यू एट 2 चेक किए, फंक्शनल वैल्यू एट 0 चेक किए। फंक्शनल वैल्यू एट 0 कितना है, x equal to 0 के पे भी 2 plus x है, that is 2 plus 0, that is also 2. So by these LHL and RHL and that functional value at that point, at that 0, what we can conclude is it is continuous at x equal to 0, but we don't have that option here. So further we'll calculate the differentiability, I mean डिफरेंशिएबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है वो देखते हैं। इसको एरेज करता हूँ उसके अब तक, तो इतना सारा डिलीट करेंगे। इफ यू वांट यू कैन नोट इट, नो एरेज करूंगा और तेरी delete. Okay, cool. Now what I will do, I will check the differentiability at x equal to 0। ये किससे पता चला आपको, तुम लोगों को x at x equal to 0 पे उतना ही कैलकुलेट करने का करके, अगेन फंक्शन डेफिनेशन इज चेंजिंग एट x equal to 0, उसके लिए हमें LHD एंड RHD कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये LHD RHD डरो मत, ये नया चीज नहीं है। LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दिस वन इज राइट हैंड डेरिवेटिव। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके अकॉर्डिंगली, जी यू नो दैट पॉइंट विच पॉइंट के अकॉर्डिंगली ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ये 0 के अकॉर्डिंगली, 0 के लेफ्ट हैंड, 0 के राइट हैंड। कूल। LHD और RHD कैलकुलेट करेंगे, LHD इज इक्वल टू RHD रहा तो उस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल रहता है, नहीं तो नहीं रहता। ओके ठीक है, सिंपल यू नो फंडा। सो लेट्स कैलकुलेट द LHD। LHD के लिए एट कहाँ कैलकुलेट करेंगे, एट 0 माइनस LHD, जीरो लिटिल लेस देन 0, ठीक है, लिटिल लेस देन 0 इधर आएगा, लिटिल लेस देन 0। तो क्या फंक्शन क्या है, d by dx ऑफ लिटिल लेस देन 0 पे फंक्शन डेफिनेशन। सो d by dx ऑफ लिटिल लेस देन 0 पे क्या है, f of x, दिस इज 2 माइनस x। तो 2 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1। कूल। RHD कैलकुलेट करेंगे, RHD एट 0 प्लस लिटिल मोर देन 0, लिटिल मोर देन 0 पे फंक्शन डेफिनेशन है ये। सो d by dx ऑफ f of x, f of x मतलब 2 प्लस x। सो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1। Oh, see, LHD and RHD, they are different. One is -1, one is +1. So the function is not differentiable at x equal to 0. Got it? ठीक है, तो क्या है, डेरिवेटिव 0 से लेस देन 0 रहा तो डेरिवेटिव -1 है, ठीक है। 0 से ग्रेटर रहा तो डेरिवेटिव है +1, ठीक है। बट एट एग्जैक्टली एट पॉइंट 0
कौन सा डेरिवेटिव लेंगे तुम लोग, मैं एक ग्राफ में भी दिखाऊंगा आपको. ओके, लेट मी शो इट इन द डेस्मोस. ओके, ये समझे ना. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आया, तो दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0. पहला डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है. नॉन डिफरेंशिएबल, हाँ, नॉट, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, क्योंकि LSD और RSD दोनों अलग है. ये देखिए, कोई कुछ लोग, कुछ बच्चे जो स्टूडेंट्स नो, दे डोंट नो LSD एंड RSD. ये लिमिट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो ये इजी तरीका है आप लोगों को जो बता रहा हूँ मैं अभी. LSD मतलब कौन सा पॉइंट पे लेना, वो डिसाइड कीजिए. पॉइंट पॉइंट कैसे लेते हैं तुम लोग, कहाँ फंक्शन डेफिनेशन चेंज होता है, कहाँ फंक्शन डेफिनेशन, इधर इन दिस एग्जाम्पल 0 पे फंक्शन डेफिनेशन चेंज हो रहा है. 2 + x लिटिल ग्रेटर देन 0 पे 2 + x, लेस देन 0 पे 2 - x हो. सो वो पॉइंट पे 0 पे हम LSD और RSD कैलकुलेट करने का. LSD कैलकुलेट किए तो एट 0 माइनस लिटिल लेस देन 0 पे 2 - x है. इसका ये क्या क्या डिफरेंस, ये फंक्शन डेफिनेशन 2 - x है. 2 - x का डिफरेंशिएशन होता है -1. और RSD एट 0, RSD मतलब राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड ऑफ 0, राइट हैंड साइड 0 मतलब ये फंक्शन आता है 2 + x आता है, उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है. LSD इज नॉट इक्वल टू 1, LSD इज नॉट इक्वल टू RSD, so this is not differentiable at x equal to 0. That's it. So let me show this in the graph. So I have plotted the graph here. It is 2 + x when x is greater than or equal to 0. It is 2 - x when x is less than 0. The graph looks looks like this. The screen is visible, right? ये देखिए, तुम लोगों को एट x इक्वल टू 0 पे चेक करने बोले हो, ठीक है. एट x इक्वल टू 0 the function is continuous. We verified it. X equal to 0, we got LHL as 2, RHL as 2, and function value is also 2. So it is continuous graph. But how about the differentiability? It is not differentiable at x equal to 0, क्योंकि देखिए, डिफरेंशिएशन मतलब क्या, डिफरेंशिएशन मतलब फाइंडिंग स्लोप. तेरे 1 second, let me take that pointer here. Show desktop. हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी मतलब क्या, स्लोप एट दैट पॉइंट. डिफरेंशिएबिलिटी एट सम पॉइंट मतलब स्लोप एट दैट पॉइंट. दैट पॉइंट, अभी पॉइंट क्या है, इधर 0 है. सो स्लोप 0 पे क्या क्या हो सकता है, अभी टेंजेंट, स्लोप मतलब टेंजेंट आल्सो, ठीक है. अभी 0 पे टेंजेंट क्या, कौन से डाल सकते हैं, ये 0 पे मतलब ये पॉइंट पे एट 0,2 पॉइंट पे, तो टेंजेंट कौन सा डाल सकते हैं, ये एक टेंजेंट बनता है और ये एक टेंजेंट बनता है, ठीक है. वाओ, नाइस लाइन. ये एक टेंजेंट बना और ये एक टेंजेंट बना, दो टेंजेंट बने इधर, पता है, दिख रहा है आपको. तो स्लोप मतलब dy/dx मतलब स्लोप ना, dy/dx मतलब स्लोप, वो मतलब tangent, that is nothing but rate, everything all are related. So dy/dx मतलब स्लोप ना, स्लोप एट दैट पॉइंट 0,2. तो ये स्लोप का, ये एक स्लोप बना, ये एक स्लोप बना एट दैट पॉइंट ओनली, ये पॉइंट ओनली 0,2. सो ये स्लोप है, कितना डिग्री लग रही है, कैसे पता बताएं सर बिना कैलकुलेट किए. अरे यार, इट्स लीनियर ग्राफ, 2 + x, y इक्वल टू 2 + x. सो मुझे लग रहा है ये 135 डिग्री है. सो 135 डिग्री, tan ऑफ 135 डिग्री कितना, स्ट्रेट लाइन में सीखे है ना तुम लोग, tan ऑफ 135 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री में भी आता है -1. सो -1 आया था ना हमारे राइट हैंड साइड पे. देखिए, राइट हैंड साइड ऑफ, राइट हैंड साइड ऑफ RSD, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल 0+ पे कितना आया था, कहाँ गया वो, लिखा हुआ सब कुछ गया. इधर है. सो ये स्लोप है 135 डिग्री, tan ऑफ 135 डिग्री, 135 डिग्री -1, ये इसका स्लोप है.
ग्रेटर देन 1 नहीं, लेस देन 1 का ये स्लोप, ठीक है, लेस देन 1 का ये स्लोप है 135 डिग्री। ग्रेटर देन 1 का रेड लाइन का स्लोप की कितना डिग्री एंगल है? ये डिग्री कितना है? 45 डिग्री। tan ऑफ 45 कितना? इट इज 1। सो ग्रेटर देन 0 पे 1 है, लेस देन 0 पे -1 है, ठीक है। दो ये आ रहे इधर 1 एंड -1, ये पॉइंट पे कौन सा लेंगे तुम लोग? -1 लेंगे या +1 लेंगे? सो उसके वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट हटाने के लिए क्या ये किए, LHD और RHD का कॉन्सेप्ट लाए, LHD एंड RHD। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आए तो क्या क्या समझते हैं हम? डेरिवेटिव डजंट एग्जिस्ट, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। अब आप लोगों को इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन, इज इट डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल व्हेन x इज ग्रेटर देन 0? Is this function differentiable when x is greater than 0? Yes or no? Think and answer. Yes or no? x greater than 0, x greater than 0 मतलब ये रेड लाइन, हाँ क्लियरली इट इज डिफरेंशिएबल। सो कहाँ भी पॉइंट लो उस पे हम स्लोप मार सकते हैं, दैट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद उसका स्लोप दिख रहा 45 डिग्री। सो इसको डिफरेंशिएट करते हैं और इसका आंसर है 1। अभी बताइए x लेस देन 0 डिफरेंशिएबल, नो x लेस देन 0 रहा तो डिफरेंशिएट होता है कि नहीं f ऑफ x? यस, डिफरेंशिएट होता है, क्योंकि लेस देन x पे इसका आंसर है d बाई डी एक्स है -1, दैट मतलब स्लोप इज -1 मतलब 135 डिग्री। समझ में आ रहा? आई थिंक आई मेड दीज थिंग्स वेरी क्रिस्टल क्लियर। कूल, थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's see this question. F of x is ax square plus 1 for x equal to, again they are given two definitions. इसको ऐसे लिखिए तो अच्छा लगेगा तुम्हें, आई मीन पढ़ने इजी होगा। तो मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है कि देखिए x greater than 1 पे एक डेफिनेशन है, सो दैट इज ax square plus 1 when x is greater than 1 and it is x plus a when x is less than or equal to 1। दो डेफिनेशंस है, ठीक है, ओके। देन f is derivable at x equal to 1 if, ओके दे हैव गिवन इट इज डिराइवेबल मतलब इट इज डिफरेंशिएबल। सो मतलब क्या? LHD इज इक्वल टू RHD। इसका इंटरनल मीनिंग और एक बन सकता है, इट इज कंटिन्यूअस मतलब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट 1, ठीक है। मतलब डिराइवेबल का मतलब कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है, मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है इसको और ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है, ठीक है। दोनों में से मैं ये लेफ्ट सेकंड यूज करूंगा, दैट इज LHD इक्वल टू RHD। LHD कहाँ का चेक करेंगे, कौन से पॉइंट पे? देखिए कहाँ फंक्शन डेफिनेशन चेंज हो रहा, फंक्शन डेफिनेशन इज चेंजिंग एट पॉइंट 1, सो आई विल कैलकुलेट 1 माइनस एंड 1 प्लस। सो LHD एट 1 माइनस क्या होता है? 1 माइनस पे, 1 माइनस पे इसका डेफिनेशन है x प्लस ये, ठीक है। सो d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस ए, दैट्स इट। 1 माइनस पे, सो ये बना इसका डिफरेंशिएशन 1 बना, दिस इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ RHD एट 1 प्लस, तो RHD एट 1 प्लस क्या बनेगा? ये डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस पे फंक्शन डेफिनेशन क्या है? ये है फंक्शन डेफिनेशन, सो दैट इज ax स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन बना, ax स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बना 2ax, ठीक है, 2ax एट 1, 2ax एट 1, x इक्वल टू 1 प्लस क्या हुआ? x का वैल्यू 1, सो दिस इज 2a। सो 1 इज इक्वल टू LHD इक्वल टू RHD, क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएबल है एट 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू, तेरे कहाँ गए यार पॉइंटर, हैंग हुआ क्या? ओके ठीक है, आई गॉट माई पॉइंटर बैक, ठीक है। सो LHD इक्वल टू RHD उन लोग ही दिए, तो 1 इज इक्वल टू LHD 1 RHD 2a,
तो इसको सिंपलीफाई किया तो ये इक्वल टू 1/2, दैट्स इट। कितना इजी है नहीं। तो वो लोग डिराइवेबल करके दिए तो तुम चुप, मतलब आंख बंद करके समझने का कि एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, एल एच डी लेने का, आर एच डी लेने का। तुम लोगों को डिफरेंशिएशन तो इजीली आता है, राइट? डिफरेंशिएशन इजी करते हैं, इजीली यू कैन इजीली डू, बट कैसे, किसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे डिफरेंशिएट करना है, मैं अभी बता रहा हूँ। एल एच डी इक्वल टू आर एच डी लिए क्यों डिफरेंशिएबल है, तो एल एच डी क्या हुआ, 1 माइनस का डेफिनेशन ये है, 1 प्लस का डेफिनेशन ये है, सो उसको डिफरेंशिएट करो और इसको डिफरेंशिएट करो और दोनों को इक्वेट करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, दैट्स इट, ये इक्वल टू 1/2। I hope I am making things very clear. If you have any questions, please do drop in the comments box. Okay, let's see the next question. Again देखिए, ये दो तीन फंक्शन डेफिनेशन है, मुझे ऐसे लिखता हूँ ये f of x is equal to, it is 1 when x is less than equal to -1, it is mod x when x is -1, -1 और x के x इज -1 और +1 के बीच में रहा तो mod x, और x इक्वल टू 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इधर पॉइंट्स अभी डिसाइडर, आई मीन सस्पिशियस पॉइंट्स भी बोल सकते हैं इनको, सस्पिशियस पॉइंट्स कौन से दिख रहे हैं मुझे तो दिख रहा -1 +1, दो पॉइंट्स दिख रहे इधर, क्योंकि -1 के लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन डेफिनेशन 1 है, -1 के राइट हैंड साइड पे mod x है, और 1 के लेफ्ट साइड पे mod x है, और 1 के राइट साइड पे ग्रेटर देन 1 पे 0 है। तो मुझे दो सस्पिशियस पॉइंट्स दिख रहे इधर, -1 एंड 1। आप लोगों को भी दिख रहा करके मैं समझ रहा हूं। ये पढ़ने आता है ना, ये पढ़ने नहीं आए तो यू शुड गो बैक टू योर बेसिक्स एंड फाइंड आउट, लाइक लेस देन कैसे यूज करते हैं, ग्रेटर देन कैसे यूज करते हैं, लेस देन -1 रहा तो कौन सा नंबर आता है, ग्रेटर देन -1 रहा तो कौन सा नंबर आता है। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दोज थिंग्स। कूल। तो हम इतना समझ गए बाय दीज 3 पॉइंट्स। नाउ कंसीडर, लेट्स check one by one option. f is differentiable for all x, f is differentiable for all x, मतलब इन दोनों को चेक किया तो बस हमें, बाकी सबको तो डिफरेंशिएबल है। 1 तो कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, स्लोप 0 ये है, तो -1 और +1 को चेक करना पड़ेगा। ये +1 ना, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, -1 और +1, ठीक है। f is continuous everywhere, f continuous देखना पड़ेगा। f is differentiable at x equal to -1, f is continuous at x equal to -1। तो -1 पे बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं उन लोग, ठीक है। -1 पे देखते हैं हम, ओके। कंटिन्यूटी का अच्छा करेंगे हम। सो कंटिन्यूटी के लिए LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a। -1 पे कर रहा हूँ, देखिए -1 क्यों कर रहा हूँ, ऑप्शन में -1 दिए है, ठीक है। +1 क्यों करूँ मैं, -1 पे चेक करेंगे तो हमें एक्चुअली -1 और +1 दोनों पे चेक करना है, मगर ऑप्शन के हिसाब से जा रहा हूँ। -1 पहले चेक करता हूँ, बाद में +1 हमें चाहिए तो चेक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। LHL कैलकुलेट करेंगे। LHL के लिए ये कैसे बनेगा, लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x टेंड्स टू कहाँ, -1 माइनस लेस देन -1, ठीक है। तो ये RHL क्या बनेगा इसका, लिमिट ऑफ f of x when x tends to -1 प्लस, ठीक है, माइनस ग्रेटर देन लिटिल मोर देन -1। पहला ये कैलकुलेट करेंगे, f of x लिमिट ऑफ f of x -1 के लेफ्ट साइड लिटिल लेस देन -1, ये माइनस है नहीं, -1 के लिटिल लेस देन, लिटिल लेस, सो -1 के लिटिल लेस मतलब ये 1 हुआ, तो इसके डिपेंडेंट है नहीं ये आंसर, लिमिट ऑफ 1 इज 1। ये लिमिट ऑफ f of x -1 प्लस -1 प्लस मतलब -1 के राइट हैंड साइड पे क्या आता है, mod x when x tends to -1 प्लस पे। अभी देखिए mod x, it has again two definitions. It is x when x is greater than or equal to 0. It is -x when x is less than 0, ठीक है। अभी देखिए हमें -1 के पॉजिटिव, सो -1 के पॉजिटिव कहाँ आता है, ये नंबर लाइन ड्रा किया तो मैंने, ये 0, ये -1 के राइट हैंड साइड, इधर मतलब इस कैटेगरी में गिरेगा वो, ठीक है। ये बनेगा लिमिट ऑफ -x,
when x tends to -1 पॉजिटिव, समझाना है माइनस एक्स क्यों लिया मैंने, -1 पॉजिटिव, -1 पॉजिटिव मतलब 0 से लेस, ये नेगेटिव, सो 0 से लेस ये कैटेगरी आता है, सो -x आता है, सो इसलिए -x लिया। ठीक है, उसको ये -x में ये वैल्यू -1 पुट किए तो क्या आया, माइनस ऑफ -1, सो दिस इज +1, गॉट इट। अभी -x आया है, उसमें x का वैल्यू डालूंगा मैंने, -1 डालूंगा, तो -1 ऑफ -1 इज +1, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एंड f ऑफ 1 कितना होता है वैल्यू, f ऑफ 1 कितना दिए, सॉरी f ऑफ -1 यार, -1 पे चेक किया ना, f ऑफ -1 कितना है, -1, हाँ इधर है, -1 पे भी आंसर उन लोग दिए +1, सो इट इज कंटिन्यूअस, f of x is continuous at x equal to -1, this is the option. I think this is the first inspection what you have done, we have calculated LHL, RHL and functional value at that point, so उसके हिसाब से ये continuous करके दिख रहा है मुझे, ठीक है। अभी ये डिफरेंशिएबल होता है कि नहीं चेक करें, x equal to -1 पे, प्लीज नोट डाउन दीज ऑल पॉइंट्स, ये LHL कैलकुलेट करने का, ये RHL कैलकुलेट करने का, ये देखिए मॉड एक्स पे, दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप, मॉड एक्स पे मैंने उसको और डिवाइड करके मुझे कहाँ चाहिए उसके हिसाब से मैं फंक्शन डेफिनेशन लिया। नो प्लीज स्टॉप एंड एनालाइज एंड थिंक एंड टेक द corresponding function, got it? Okay, now my next step is to calculate a right hand derivative, I mean derivative, whether it is differentiable है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा, नहीं है मेरे, let me delete this, let me erase the small parts, cool। अभी ये डिफरेंशिएट होता कि नहीं एट x इक्वल टू -1, थर्ड ऑप्शन का मैं देखता हूं अभी, ये उसके लिए LHD इक्वल टू RHD बनना चाहिए, LHD इक्वल टू RHD, LHD मतलब -1 के लिटिल लेस देन -1 के लिटिल लेस, एंड RHD मतलब -1 के लिटिल मोर, आई थिंक आई एम मेकिंग सेंस। सो ये -1 रहा तो इसको लेफ्ट हैंड के जो डेरिवेटिव निकालता हूँ उसको बोलते हैं LHD, राइट हैंड का जो निकालता हूँ मैं उसको बोलते हैं RHD, आई थिंक आई एम मेकिंग सेंस, कूल। ओके, अभी LHD और RHD कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। LHD कैलकुलेट करने के लिए क्या तुम लोगों को यू हैव टू डिफरेंशिएट d by dx ऑफ लेफ्ट हैंड ऑफ -1 एट -1 लिखता हूँ, एट x इक्वल टू -1, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू -1, -1 के लेफ्ट साइड पे LHD कर रहा हूँ मैं भी, -1 के लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन डेफिनेशन क्या है, -1 इधर है, -1 के लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन डेफिनेशन 1 है, कूल, d by dx ऑफ 1 इट इज 0, कांस्टेंट 0। अभी RHD करूं, RHD के लिए d by dx ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ -1, राइट हैंड साइड ऑफ -1 से थोड़ा बड़ा इधर में गिरता है वो, -1 से थोड़ा बड़ा मतलब इधर आता है ना, तो इसका है मॉड एक्स, ओ मॉड एक्स आया, सो इसका d by dx ऑफ मॉड एक्स का कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाँ लग रहा है अगेन मॉड एक्स का फंक ये डेफिनेशन 2 है, इट इज x when x is ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट इज -x when x is लेस देन 0। मैं मॉड एक्स का डिफरेंशियल कहाँ चेक कर रहा हूँ, -1 प्लस पे चेक कर रहा हूँ, -1 प्लस पे चेक कर रहा हूँ, -1 प्लस पे, -1 प्लस मतलब लिटिल मोर देन -1, दैट इज -1.00000000001 पे, ठीक है। सो -1.0001 पे के कहाँ गिरता है, इधर चेक किए तो ये अगेन लेस देन 0 ही गिरता है, -x ही गिरता है, तो ये d by dx ऑफ -x बनता है, मॉड x नहीं लेता मैं, मॉड x में चेक रहे मैं -x लेता हूँ, क्यों, मेरा चेक कर रहा हूँ माइनस पे, ठीक है। तो अभी d by dx ऑफ -x क्या बनता है, -1, सो LHD is 0, RHD is -1, so LHD is not equal to RHD, so f is not differentiable at x equal to -1, ये डिफरेंशिएट होता है करके बोल रहे हो, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हुआ, और ये f is continuous एवरीवेयर लिखे है, f is continuous एवरीवेयर लिखे, तो ये ठीक होगा कि रॉन्ग होगा, कंटिन्यूस एवरीवेयर कहाँ, तो ये हम चेक किए पहले, इससे पहले कंटिन्यूटी का, वो कंटिन्यूस था, हाँ कंटिन्यूस था, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू +1 पे कंटिन्यूस है ये, +1 पे चेक करना पड़ेगा तुम लोगों को, +1 पे चेक करो, पट से चेक करके छोड़ेंगे LHL एंड RHL एट
x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे क्यों चेक कर रहा हूं मैं? अभी देखिए देर आर टू मेजर पॉइंट्स, -1 +1, मैं स्टार्टिंग पे ही बताया -1 और +1 दीज आर द डिसाइडर पॉइंट्स। अभी उसको छोड़ के बाकी जगह ये कंटिन्यूस है, क्योंकि 1 तो कंटिन्यूस फंक्शन, मॉड x भी कंटिन्यूस फंक्शन, 0 भी कंटिन्यूस फंक्शन, मगर ये -1 और 1 ये सस्पिशियस पॉइंट्स है ये फंक्शन के हिसाब से, ये जो फंक्शन डेफिनेशन दी है ना उसके हिसाब से दीज आर सस्पिशियस पॉइंट्स। इधर कंटिन्यूस रहा तो बाकी जगह तो अपने आप ही कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है। तो +1 पे चेक करेंगे ये LHL, LHL मतलब 1 माइनस पे, LHL मतलब 1 माइनस पे क्या है डेफिनेशन, 1 माइनस इधर आता है, तो इस इज mod x। सो लिमिट ऑफ mod x व्हेन x टेंड्स टू 1 माइनस। अभी ये mod x का क्या लेंगे डेफिनेशन, mod x का 1 माइनस लिटिल लेस देन 1, लिटिल लेस देन 1 0.999999, सो तभी भी कहाँ गिरेगा ये, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में गिरेगा, सो ये बनेगा लिमिट ऑफ x, x गिनेगा, x इज 1 माइनस, सो इसका आंसर बना 1। सो RHL कैलकुलेट करेंगे अभी, लिमिट ऑफ 1 प्लस मतलब कहाँ आएगा, x ग्रेटर देन 1 इधर आएगा, तो उसका डिफरेंशिएशन है उसका, सो 0, लिमिट ऑफ 0 व्हेन x टेंड्स टू 1 प्लस, इसका आंसर है 0। हाँ देखिए LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, so it is not continuous at x equal to 1, x equal to 1 पे not continuous, तो f is continuous everywhere, wrong, f is differentiable for all x, no, wrong, ठीक है। तो x equal to -1 पे चेक किया हमने, वो इधर इक्वल नहीं है, तो इसको मैं ग्राफ में दिखाऊं आप लोगों को तो इजीली पता चलेगा। मैं ये ग्राफ ड्रा करूं क्या इधर ही, please note these all points, these are very important. If you don't understand, watch it again and try to concentrate on each wordings. Okay, cool, thanks. Let me show this in the Desmos. नहीं मैं खुद ड्रॉ करके दिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है करके। Shall I erase this all or shall I take the copy of this one and erase? Okay, where I was, हाँ अच्छा हुआ एक ब्लैंक है मेरे पास, मैं एक क्वेश्चन कॉपी करता हूँ, नहीं तो इतना मुझे चाहिए। ठीक है, ओके, मुझे क्वेश्चन भी मिला, ये भी मिला, ठीक है। मैं इसको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊंगा मैं इधर ही आपको, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो पॉइंट्स कहाँ बनेंगे, ये 0 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, बस इनफ, -4 इधर 1 2 3 इधर -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो अभी ग्राफ ड्रा करेंगे, एक 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 करके करेंगे। सो ये क्या था इधर, ये आधा क्यों आया रे, 1 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू -1, सो -1 से स्टार्ट चलो करेंगे। पहला x लेस देन -1, लेस देन आर इक्वल टू -1 रहा तो ये -1, यस x लेस देन आर इक्वल टू -1 रहा तो ये +1, सो पॉइंट आएगा इधर, ठीक है। तो इधर से लेफ्ट सभी जगह -2 को भी 1, -3 को भी 1, -4 को भी 1, -∞ को भी 1, तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट का खत्म हुआ। अभी ये mod x व्हेन x इज इन बिटवीन -1 एंड +1, -1 और +1 के बीच में रहा तो ये mod x, तो mod x का ग्राफ आपको पता है, तो ऐसे आता है, तो इधर आया, वाह, तो इधर से इधर, ठीक है, कूल। तो x लेस देन 1, ठीक है, तो इधर 1 पे हॉलो सर्कल, क्यों, क्योंकि क्योंकि 1 पे इंक्लूड नहीं है mod x, 1 इधर 0 है, 0 है,
वन इधर आता है, x इक्वल टू 1 पे आंसर इज 0. इधर filled circle और hollow circle, I think you have studied it in your functions chapter. cool. इधर भी filled circle और ये है hollow circle. hollow circle मतलब उधर फंक्शन डिफाइन नहीं है. तो अभी इधर तक आए हम. x इक्वल टू 1 पे ये मॉड x नहीं रहा, मॉड x इक्वल टू 1 पे 0 बनाइए. x इक्वल टू 1 पे 0, तो 0 से स्टार्ट होता है. सो इधर राइट हैंड साइड सभी जगह 0. अच्छा, तो इसके ऊपर आता है x से, इसके ऊपर ही फंक्शन आता है. तो क्या है, ऐसे आता है. ठीक है, तो फंक्शन आए, कैसे फंक्शन डेफिनेशन हुआ. अभी देखिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लिया, तो आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगा. तो इसको आप ग्राफ में ड्रैग किए तो ऐसे दिखता है. देखिए लेफ्ट हैंड साइड से ऐसे आया, इधर -1 को मॉड एक्स बना. मॉड एक्स का ग्राफ आप डाले. मॉड एक्स का ग्राफ पॉइंट हर एक पॉइंट पे डालना है तो आप डिवाइड करके डाल सकते हैं. ऐसे आया और इधर हॉलो सर्कल है, इधर चालू हुआ और ऐसे कंटिन्यू हुआ. ठीक है, अभी देखिए क्लियरली दिख रहा है एट x इक्वल टू 1 पे इट इज नॉट कंटिन्यूअस. नॉट कंटिन्यूअस. अभी ब्रेक हो रहा ना, इधर पॉइंट पेन उठा रहा हूँ और नीचे इधर आके वापस पेन पॉइंट रख रहा हूँ, पेन रख रहा हूँ मैं. ठीक है, और f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1. देखिए इधर कंटिन्यूअस है तो ऑप्शन ए सेलेक्ट किए थे हम. अरे यार ये, हाँ इधर से करना पड़ेगा उसको. ठीक है, ओ ठीक है, ये ऑप्शन डी ऑप्शन आया. एफ इज कंटिन्यूअस दिख रहा है हमें. तो एफ इज डिफरेंशिएबल क्यों नहीं बना -1 पे. देखिए शार्प एज बोलते इसे, शार्प एज दिख रहा. ये लेस देन रहा तो वो 0 आया था हमें स्लोप. लेस देन -1, ग्रेटर देन -1 पे ये स्लोप आया शायद -1, पता नहीं -1 आया होगा. ठीक है, तो आप लोग चेक किए, स्लोप ये बनता है लेस देन, ये टेंजेंट बनता है तो उसका स्लोप 0 बनता है. तो ये इधर डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि इधर शार्प एज है. कहाँ भी फंक्शन डिफरेंट मतलब शार्प एज जाता है, शार्प एज, उधर फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं होता. फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं होता, डिफरेंशिएट नहीं होता, नहीं होता. इंग्लिश में लिखना चाहिए यार. डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. वी कांट डिफरेंशिएट एट शार्प एजेस. सो दिस इज वन शार्प एज एंड अगेन एट 0 पे इट इज डिफरेंशिएबल नहीं है. यू कैन चेक LSD एंड RSD. अगेन एट 1 पे इट इज नॉट कंटिन्यूअस. सो डिफरेंशिएशन का बात ही नहीं आता. ठीक है, एंड अदर पॉइंट्स greater than 1 it is differentiable, it is continuous. cool. and in between -1 and +1 it is differentiable. oh at 0 पे भी differentiable नहीं है, 0 पे भी sharp edge है, मगर 0 पे in between 0 and -1 पे differentiable है. 0 से 0 और 1 के बीच में अगेन डिफरेंशिएबल है, एट 1 डिफरेंशिएबल नहीं है, और -1 के लेफ्ट हैंड साइड अगेन डिफरेंशिएबल है, अगेन कंटिन्यूअस है, सब कुछ है. got it. I think I made this point, this function very crystal clear. You know, I can't solve all the questions. I will solve everything, all the possible questions in the same question, so that you can easily track the other questions. I think this video was helpful to you guys. Thank you very much. Thank you very much for watching this video. अरे यार बंद कैसे करने के इसको.